It's a very interesting subject, and a subject which is, you can say, the need of the hour, and it's directly related to, or you can say, it is not core civil, but we have many case studies and we can relate it to our civil engineering field. So if you see the syllabus is quite vast, but again, what we have to do is we need to just take some case studies and we need to complete it, because है ना, ये जो entire accountancy finance का जो become का special stream है, तो a part of that उनका syllabus is here ना. If you see it, it has economics, it has capital budgeting, it has accounting, and a lot of things are there na? But the examples which will be covered are related to civil engineering. Of course, there is a book, Khan and Jain करके book है, बहुत अच्छी book है, that you can refer. I'll just go to references before I start with the syllabus. Yeah. तो है ना, these are all references which are there. So देखो, फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने much is written about ना, but you will not get a customized book which is there for civil engineering, है ना. सिविल इंजीनियरिंग फाइनेंस करके ऐसा कोई बुक मिलेगा नहीं, and for that purpose you have to rely on the college notes and whatever lectures we conduct ना, उसके you need to, you can say, I'll say you need to strictly attend the lectures, because otherwise it will become very difficult. ये एक बुक है 15 नंबर का, आप देखोगे दिस इज अ गुड बुक, प्रसन्ना चंद्रा की. देखो सारी बुक्स वैसे दे आर गुड ओनली, इट इज आवर परसेप्शन ना, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना. वैसे तो हर बुक में कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा, some sort of additions you'll get, but again some personal preferences are there. So I'll not suggest you to buy the book. Some of the books are there already, good books we have purchased in library, you can just issue it, because hardly you are 16 students and sufficient copies are there. तो एक जन अगर, है ना, आप इशू भी कर लोगे तो इतना कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा. there are sufficient copies of books. Fine. So for different modules you have different books, and again I'll say it is not one book will not cover everything, and therefore I request all of you to just be present in the lectures, है ना. Of course passing is not difficult in this subject. आपको स्कोर करना है तो you need to attend the lectures. पासिंग तो आप पास हो जाओगे, because ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि समथिंग, है ना, you're engineers and finance should not be difficult for you ना. But only thing, अगर स्कोर करना है तो be attentive and you understand the various techniques, various you can say methodologies which are there, and various concepts which are there in finance. Theoretical aspect भी पूछता है, 80 marks का पेपर है, तो roughly you can expect 20 marks theory, you can expect 20-25 marks. तो same proportion जैसे PNS का है ना, 75-25, 75% numericals and 25% or 30% of theory. Fine. So just I'll run through the syllabus and I'll start with some basic you can say terminologies of finance. So पहला है principle of economics. Now there is a difference between finance and economics. Economics is, देखो, it is a broader term. Finance में सिर्फ we are concerned with the money matters, है ना. Economics is how and how much of money will be economically required for any project to be accomplished, है ना. So there is a difference. It is a broader term, it covers more things as compared to finance. तो इसमें मॉड्यूल नंबर 1 is core theory. What I'm planning ना, जो भी हम ना ऑनलाइन, देखो my maximum lectures will be offline because it is a numerical subject. But जो भी अपना ऑनलाइन कंटेंट है, I'll try to complete the theory in the online mode, and the recording is also there, that will be shared. Of course PPTs and all ये सब है, बना हुआ है, that I'll share with you. You can just refer to offline online mode में जो theory part इसका part problem नहीं रहेगा, but numerical जो part है, because you need to understand how a particular sum is to be solved and what all variations can be there in particular numericals ना. So for that purpose जो numerical aspect है that will be covered in offline mode, and जो theoretical aspect है mostly I'll try to cover it in the online mode, because it will be convenient for you also. And of course theory है तो you can have some self study also. इसमें मतलब need not be कि आप, है ना, everything is will be delivered on in the lectures, because it is again theory भी बहुत concept समझ में आना है आपको,
and some things of course are which are important. I'll give more deliberation, I'll give more time for that particular theory. Fine. So this module number 1 again इसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में. Fine. Module number 1 is total theory. Module number 2 is numerical. 3 भी numerical part है. 4 is also numerical plus theory, दोनों आता है इसमें. But major we can say some part of theory is there. So इसमें numerical. Module number 5 is numerical. 6 is theory plus numerical, and 7th is also theory plus numerical. So if you see most of your है ना 7 मॉड्यूल 8 मॉड्यूल्स है, सॉरी 7 मॉड्यूल्स है. तो 7 मॉड्यूल्स में 2 modules are core theory, 1 or 2 modules are mix of theory and numerical, and बाकी के modules are ये जो बड़ा module है module number 3 if this way है ना number of hours allotted is 14, and module number 2 these are big modules है ना. इसमें numerical बहुत बड़े बड़े numericals हैं. Even you can expect है ना 20 marks numerical in PNS, बड़ा जो numerical आता है ना, और at least 14 marks के 2 numerical कभी कभार पूछते हैं. So you need to plan properly. Of course इसमें time offline में again time is very important. Time में what I have seen is people are not able to complete their paper. They know everything कैसे करना सब मालूम, because tally नहीं होता है, accounts assets and liabilities are not tallied, so उसमें time चले जाता है and then they lose on important. आता सब है but खत्म नहीं होता. So that also care you need to take, and practice is important. Fine. So this is about the syllabus content. बहुत vast syllabus है, but whatever is applicable to our civil engineering field, we'll try to study that. Fine. So first thing, my screen is visible now, or is it hang हो गई है? Visible है? Visible है sir, visible है. Very nice. Okay, fine. So goals and functions of financial management. तो पहला है definition of finance. Now I'll ask you, what do you understand by finance? Any one of you? Yes sir, finance means actually budgetary provision, finance. Okay. New projects to be common. Example, Mhm. so planning is involved, as well as many times what is happening, all civil engineers are thinking we are the great in our in field, but simultaneously account people also very much important, so that they can handle finance related part, and finance means planning of the finance. Now 11th year plan, 10th year plan, there was some budget has been allocated by the government of India. Now Correct. all this pay-year plan has been abolished by, and now Niti Aayog has come. So it's related. Finance means actually fund requirement for the projects and booked by any specialized agencies. Good. Finance in layman's term, if you call finance ना, नाम आम आदमी के भाषा में अगर finance बोलेंगे तो it is nothing but money ना, money matters. Funds, yeah, funds. So whatever is required है ना, whatever money is required, and for you to accomplish a project है ना, तो उसका planning भी जरूरी है. Budget proposal is necessary, and budget should be such that it should not be too under budget and too over budget. So these two important terms are important, because whenever we finance a project, we'll study a very good case study about Konkan Railway project, जहाँ पे how the cost of the project, it was 350 crores initially, it went to 6,000 crores. कैसे वो इतना many folds increase हुआ ना, almost 20 times वो कैसे पैसा उसका increase हुआ. So a very good case study. Of course, I have 2 articles on that. So that article will just read in one है ना, online mode में हम read करेंगे. I'll give you selected key inputs in that. So that will be covered, because वो question पूछता है 10 marks या 12 marks के लिए that question is asked. So how to write है ना, even it is a theoretical question, but how to write a proper answer to that, because 10 marks के लिए कितना क्या क्या लिखोगे, and twisted question पूछता है उसके ऊपर. So that we need to understand. So that we'll discuss. हाँ, एरियाज ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस में क्या क्या एरियाज है? करियर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एजेंसी इशू एज इट रिलेट्स टू ओनर वेल्थ मैनेजमेंट. अच्छा, देयर आर 2 थिंग्स है ना, फाइनेंस में 2 चीज होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ यू टेल मी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है? Wealth maximization, sir. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. एनी अदर आंसर्स? यस उमेर, सिद्धेश, क्या जरूरी है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जरूरी है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अच्छा, एनी ऑफ यू डील्स इन शेयर मार्केट? शेयर मार्केट में कभी शेयर खरीदे हो, बेचे हो किसी ने? नहीं सर, नहीं। नहीं खरीदे. ओके गुड. देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आर टू डिफरेंट कांसेप्ट्स, है ना. अभी देखो आपने मेरे आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, फाइन, and I require some equity. Again, what is equity, what is debt, and all these all things we'll discuss in later you can say models. But समझो अब मुझे कुछ पैसा चाहिए. Now two options ना, दो options है मेरे पास. अगर मुझे कुछ प्रोजेक्ट चालू करना है, one option is either I'll take loan from the bank, है ना, लोन बैंक से लेंगे, उसको फिर वापस दे देंगे. This is option number one. Other option is there, I will partner with a financial firm who will raise the finance for me and I just need to give them the profits, है ना. So suppose Umair is a big you can say financial firm. Umair has a very big financial firm who lends support to say support to new upcoming projects, fine. So Umair will study my project idea, my business idea, and then he will find that my finance idea, my business idea is really attractive, and he will make profit from that business. So what he will do, he will invest in my project, fine. So इन्वेस्ट करने के पहले, इन्वेस्ट करने के बाद ना, इफ माय टर्म्स आर दैट, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं. ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. तो जस्ट फॉर एग्जांपल उमेर हैज इन्वेस्टेड इन माय फर्म एंड समझो एक साल उसने पैसा लगाया, सपोज उमेर, and out of that 1 crore in 1 year's time, suppose I have made a profit of 10 lakhs. ठीक है. अभी वो 10 लाख रुपीस मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा उमेर को दे दिया वापस. What will happen? You will be in loss, means your time and all have been lost. No, you are working for me. It is like that. नहीं नहीं, आप देखो, आप पूरा पैसा तो आपका नहीं लगाएंगे, कुछ मेरा पैसा भी लगाएंगे ना. हाँ. आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ना, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है उमेर का, उमेर को मुझे 10 लाख देना है. अगर मैंने पूरा का पूरा 10 लाख दे दिया तो क्या हो जाएगा? You will be handicapped. You don't have money in that case. हाँ, because देखो I have to start from scratch again ना. ठीक है, उमेर का 1 CR is there, but again I have to start with 1 CR. And what is happening, जो मेरे पास जो 10 लाख ऊपर का मिल गया था, वो मैंने उमेर को पूरा दे दिया. So I have to start again with 10. So there will be no growth of business. जहाँ पे हम पहले थे वहीं पे रहेंगे. बात समझ रहे हो? But suppose I give उमेर 10 लाख प्रॉफिट हुआ है ना, चल 5 लाख तू ले, 5 लाख I will invest in the new projects. Further business. Further business. So I will have now more money to play with, fine. So there is a famous saying, not I'm not sure how many of you will agree with this. Money has the power of multiplying itself. जितना ज्यादा पैसा उतना पैसा बनता है. ठीक है. Yes. Now this है ना, because you just see ना, people who are richer they get richer by the day, and those who are poor they remain poor. Simple example, Money share makes market. money. Yeah, money makes money. Yes. सिंपल एग्जांपल है गिव इन द शेयर मार्केट ना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आजकल के दौर में. अभी देखो, जिसके पास अभी शेयर मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे होता है, बट एक ट्रेंड पता चलता है. अभी मुझे ट्रेंड पता चला है कि शेयर मार्केट बढ़ने वाला है. अभी जैसे यूक्रेन, अभी जस्ट आई गिव सम वेरी गुड एग्जांपल्स. यूक्रेन का वॉर हुआ तो सडनली शेयर मार्केट जस्ट फेल डाउन ना. यू हैव सीन दिस आल्सो. गोल्ड प्राइसेस रोज फॉर से 5-6 दिन या एक वीक तक गोल्ड प्राइसेस वेंट टू द स्काई, एंड शेयर मार्केट गिर गया था, 8,000-10,000 पॉइंट गिर गया था. सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू इन्वेस्ट. बट जिसके पास पैसा था, सपोज जिसने 10 करोड़ जिसके पास था, उसने 10 करोड़ में से 5 करोड़ लगाया, तो उसको 5 करोड़ पे इवन इफ है ना 5% पे या 6% प्रॉफिट मिला, 10% प्रॉफिट मिला, तो 5 करोड़ पे उसने क्या किया, 50 लाख बनाया. अब इसके पास पैसा ही नहीं है. जैसे लाइक पीपल लाइक यू एंड मी, वी सपोज भी हम 5,000 10,000 लगाएंगे, कितना मिलेगा हमको? 2-3 हजार मिलेंगे. बात समझ रहे हो?
नहीं Yes, sir, समझा? yes, correct. Yes, sir. It's very simple mathematics, na, simple calculation. More the money, of course, risk is also more. But if you analyze the risk and if you take proper precaution, जैसे simple like है ना क्रिकेट का मैच है ना, a batsman is there who is going for big hits, ना वो sixers मार रहा है, तो of course risk is more, but reward is also more, isn't it? और एक बैट्समैन है लाइक ड्राविड ना, ही इज प्लेइंग फॉर सिंगल्स एंड सिंगल डबल कर रहा है, तो क्या होगा? he is a secured, he will be a secured player, but what will happen? He will lose out on opportunities. बात समझ रहे हो? Yes, sir. It is similar with finance ना, if Yes. you have money, if you do not utilize it, जैसे सिंपल है ना, आपके पास पैसा है, 10 लाख रुपया है उमेर के पास, उमेर ने क्या किया, मैं 10 लाख रुपए मैं क्या करूंगा, घर के डब्बे में डाल के रख दूंगा, गल्ले में डाल के रख दूंगा, क्या होगा उसके बाद? अगले साल वो 10 लाख ही रहेंगे ना, इट वोंट इंक्रीज. बट इफ उमेर इन्वेस्ट इन द मार्केट ना, 10 लाख का तो उसको 9 लाख हो गया, तो 12 लाख होगा, कम होगा, बढ़ेगा. बट इफ ही प्लान्स प्रॉपर्ली, बराबर से स्टडी करके मार्केट में करता है, तो ही इज बाउंड टू गेट प्रॉफिट. ठीक है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना. पीपल आजकल क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देखते हैं, है ना, दे डोंट सी द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, एंड हेंस व्हाट हैपेंस, they lose on opportunities. Stakeholder focus, ethical behavior related to firms goals, activities of ये क्या है, this is the index, forms of organization, what are the different forms of this, will discuss, right? So finance is the study of financial planning, asset management ना. आजकल आप है ना, you have seen people ना, बहुत सारी चीजें, सैलरी जो भी है, सपोज किसी को सैलरी 50,000 या 60,000 जो भी सैलरी है, तो people will invest in mutual funds, they will invest in some property, कोई एसेट ले लेंगे ना. तो इसका बराबर से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने इतने ज्यादा एसेट ले लिए कि आपका सिर्फ आपके पास अभी है नहीं, अभी कुछ नहीं है खर्चा करने की. व्हाट मेनी पीपल दे डू ना, दे लिव पुअर एंड डाई रिच, ऐसा होता है बहुत सारे बार, है ना. पीपल ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन ये क्या इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि वो अपना लाइफ जी नहीं पाते, एंड व्हेन जब रिटायरमेंट होता है 60 साल 70 साल 80 साल, जब मरने की उम्र रहती है, तो क्या हो जाता, they don't have, they have money but they have not, are you understanding my point? नहीं समझा सिद्धेश? समझा सर. या जस्ट गिव मी, बीच बीच में थोड़ा बोलते रहो, बिकॉज आई एम कभी कभी क्या नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है. तो माय पॉइंट इज, पैसा इन्वेस्ट भी करना है, एंड अपना करंट जो एसेट्स है वो भी, इट शुड नॉट बी सो मच इन्वेस्ट, इतना नहीं करना है कि आपका है ना, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग है. एसेट मैनेजमेंट मतलब क्या, डू नॉट डू सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आपके पास अभी कुछ नहीं है ना, फिर आप लोन लोगे, फिर उसका लोन का इंटरेस्ट चढ़ेगा, ये सब प्रॉब्लम आता है बाद में. दिस हैपेंस विद इवन गुड एस्टेब्लिशमेंट्स ना. प्रोजेक्ट्स इतने सारे ले लेते, क्या होता है प्रोजेक्ट, देखिए अभी जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे, इफ यू हैव सीन, इफ यू हैव हर्ड इवन इन न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे जो मीडियम स्केल कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, दे हैड टू वाइंड अप द बिजनेसेस. स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जो, स्पेशली इन सिविल सेक्टर, अदर सेक्टर्स में. व्हाई? बिकॉज उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का पैसा उठा लिया था मार्केट से, एंड फिर लॉकडाउन हो गया, मार्केट का डिमांड खत्म हो गया, पीपल है ना, दूसरे भी लोग अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे. इवन अपने हाउसिंग सेक्टर में भी देखो, बहुत सारा इन्वेंट्रीज लॉक ना, स्पेशली इन मुंबई. बेटर, बट मुंबई का अब अगर आप सिनेरियो देखो, मुंबई में बहुत सारे बिल्डर्स ने ऑलरेडी दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ लॉट ऑफ हाउसेस, पैसा लगा दिया उसमें, अभी पैसा उनका हाउसेस दे आर नॉट सेलेबल नहीं है, मतलब जो रेट है मार्केट में, जो रेट है जिनका ना पैसा गया है, उतना उनको भाव नहीं मिल रहा है. A lot of factors are there, of course market trends है, फिर है ना, lot of things है. COVID also contributed है ना, पहले से market down था. If you see pre-COVID also, it was not a very, you can say very good market for investment in the construction sector. Market was down already, but COVID again है ना, further it you can say downgrade, or further it brought the market down. So you should understand that finance जो है, proper financing is important ना. Otherwise what happens, I'll tell you very good case. recession जब आया था, पहला recession जब आया था recent times का 2008 में, अमेरिका इसमें, यूएस का जो मेजर recession था, यूएस यूरोप में आया था. इंडिया का भी, इंडिया पे इम्पैक्ट उसका इतना नहीं हुआ,
इंडिया में भी इम्पैक्ट हुआ था, बट दैट वाज नॉट दैट सिग्निफिकेंट. बट यूएस में एंड यूरोप में, यूएस में देयर वाज अ केस स्टडी दैट मेनी पीपल, मेनी wealthy people, they committed suicide because they were not able to pay back the money. because वहाँ का जो, जैसे अपने पास आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ का जो रेगुलेटिंग बॉडी था, व्हाट इट डिड ना, इट अलाउड से डेट इक्विटी रेशियो, एक टर्म है डेट इक्विटी रेशियो. डेट मतलब आप जो कर्जा लेते हो बैंक से, वो दैट इज डेट, इक्विटी इज योर ओन मनी. सो डेट इक्विटी रेशियो दैट अलाउड 11:1. यानी आप अगर, आपका प्रोजेक्ट अगर 12 करोड़ का है, उसमें से 11 करोड़ आप मार्केट से उठा सकते हो, और 1 करोड़ आपको खुद का डालना है. व्हाट हैपेंड, पीपल जस्ट इन्वेस्टेड, दे टुक फ्रॉम द बैंक्स, एंड जब रिसेशन आया, देयर वाज नो बिजनेस. वन ईयर पूरा लॉक ये हो गया. अगर 11 करोड़ मैंने लिया है बैंक से, साल भर में जो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना है, सपोज मुझे 10% में इंटरेस्ट पकड़ दो, 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है, 1 करोड़ मेरा खुद का था, उसी में से चले गया पूरा इंटरेस्ट, तो बाकी मेरे पास बचा ही नहीं कुछ. आप समझ रहे हो? तो 1 ईयर the entire backbone of many industrialists was broken, and many people, है ना, there was a case that many famous people, they committed suicide due to lack of paying back the debt. So financial planning is important. It is the finance is the study of financial planning, asset management, fundraising for businesses and financial institutions. Fundraising is also important, है ना. कोकण रेलवे का जब हम केस स्टडी करेंगे, बहुत वंडरफुल केस स्टडी. You'll understand how they did. Even they went to the level of organizing road shows. Road shows भी उन्होंने organize किया for raising the fund in European countries and all. So very good case study. We'll just discuss this जब हमारा थोड़ा ज़्यादा slot हमारे पास रहेगा, because it is a big case study. उस time पे हम discuss करेंगे. Financial management can be described as a balance sheet. Again देखो, there are 3 statements. We'll come to this. Finance, कोई भी एक कंपनी का अपने को फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखना है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है, अपने को देखना है, तो हम उसकी 3 चीजें देखते हैं. एक होता है उसका बैलेंस शीट, एक होता है उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, एंड एक होता है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट. 3 चीजें देखी जाती है. ये सब पे हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं. विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. फिजिकली जब करेंगे तो थोड़ा मजा आता है इसमें न्यूमेरिकल्स. फाइन. I generally have habit of giving different values in certain numericals to different according to roll numbers. So you'll find it very interesting when you'll solve these numericals. अच्छा, there is a macro finance and micro finance. Macro means ऊपर है ना. You understand difference between macro and micro. So just see, working capital management is a very, देखो, even आप कोई भी बिजनेस करो, छोटा मोटा भी बिजनेस करो. I'm not talking about only the civil engineering sector. कोई भी आप बिजनेस करो, कभी कभार क्या होता है ना, आपको मार्केट में उधारी पे देना होता है. फॉर यू टू गेट द बिजनेस, यू नीड टू गिव समथिंग ऑन क्रेडिट. ठीक है. आप अगर बोलोगे मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए, तो आपका मार्केट में ये नहीं रहेगा. मतलब आपको मार्केट नहीं, यू कैन नॉट कैप्चर द मार्केट, बिकॉज पीपल विल गो टू द पर्सन हु इज गिविंग देम क्रेडिट. बात समझ रहे हो? कोई भी चीज आप बेच रहे हो, सपोज यू आर अ प्रीकास्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, या आरएमसी का आपका खुद का प्लांट है, रेडी मिक्स कंक्रीट, या कोई भी आपका सपोज आपका यू आर अ सैंड सप्लायर, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर फन विल टेक डिफरेंट दिस ना. तो सपोज इब्राहिम इज अ सैंड सप्लायर, फाइन, एंड इब्राहिम सेज कि नहीं मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए. तो व्हाट विल हैपन, पीपल विल नॉट गो टू हिम, पीपल विल गो, इवन दो उनको अगर थोड़ा महंगा मिल रहा है सैंड कहीं और से, तो उसके पास जाएंगे. उसको उनको अभी टेंशन नहीं. ठीक है. Giving money now and giving money after 1 month, people will prefer even if they have to give a slightly higher amount in the next month, because अभी उनका टेंशन है, especially the people who are working on a very low working capital. I'm not talking about big companies like Reliance and है ना, वो सब की बात नहीं करें, because they have their different, है ना, they manage their assets very well, they manage their working capital very well, है ना. उनको इतनी भी हद, लेकिन वो बहुत सारे हद तक, जैसे बीच में ये में है ना, जैसे रिलायंस ने ये फ्री दिया था, जियो का सिम कार्ड फ्री दिया था फॉर 3 months एंड एक्सटेंडेड टू 6 months, बिकॉज उसको बर्दाश्त करने की क्षमता थी उसके पास. इट है ना, उसने बर्दाश्त किया, इतने महीनों तक लॉसेस ने बर्दाश्त किया. वो फ्री भले दे रहा है, लेकिन उसको खर्चा है, उसके जो ऑपरेशंस का खर्चा है उसको, बट इट प्रोवाइडेड फ्री सर्विसेज टू ऑल द पर्सन हु टुक देयर द सिम, बिकॉज व्हाट, उसको मार्केट में अपने पैर जमाने थे. इट वांटेड टू establish itself
रिलायंस, बिकॉज रिलायंस का मोबाइल सेक्टर में टेली इसमें ये नहीं था। ऑफ कोर्स अनिल अंबानी का पहले वो रिलायंस का वो आता था, क्या आता था, रिलायंस का वो आता था ना फोन, Handset. Handset हैंडसेट with आता था। number. Yeah, Yeah. I'm not sure. You may be very small, na? Other people may be very small. I think Satish sir and Sagar and Roshali madam can recollect. रिलायंस का पहले वो आता था, एक फोन आता था Yes, जिसमें sir. उसी का, है ना? उसी तो का नंबर था। Yes, correct. yes. So that White business color idea का था failed. sir. Although Reliance was a very good name, but that business idea failed. So it had to shelve off the plan. So Jio came with a strategy to capture the market first. पहले उसने मार्केट पहले कैप्चर किया, बाद में प्रॉफिट देखा. This I'm talking a very good example about wealth maximization. ये एग्जांपल को आप रिलेट करो तो आपको वो पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. रिलायंस व्हाट इट डिड नॉट गो फॉर प्रॉफिट्स इनिशियली. जो रिलायंस जियो है, इट डिड नॉट गो फॉर प्रॉफिट्स. उसको मालूम था कि मार्केट कैप्चर का तो प्रॉफिट तो आना ही है. तो इट सफर्ड लॉसेस फॉर 6 months 8 months. एंड जब उसका पहला रिचार्ज लोगों ने किया, बिकॉज उसका मार्केट इतना कैप्चर कर लिया था उसने, इवन इट ओवरटुक एयरटेल एंड ऑल ना, वोडाफोन एयरटेल को उसने मतलब विद इन 1.5 years में इट जस्ट पीछे छोड़ दिया उसको. एंड फिर वो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स थे, एमटीएनएल एंड ऑल, वो तो मतलब पूछो ही मत उनके बारे में, बिकॉज ये उनको टोटली तो गॉट, हाँ पूरे डूब गए वो, उनको तो बिकॉज पूरा खरीद लिया उन्होंने, at खरीद that ही time. लिया. यस. Yes. You So know that what was the happened, market sir? strategy. Yeah. I like to share you something about now you open Yeah, this please sir, subject. please. Yes. What they have did, they have given free of cost to all over India, and this small villages also was asking Geo connection required because free. And Yeah. once it is acquired by entire India, then they started their legs putting out to everybody's. Then levying the charges, etc. And now it's come in profit. हाँ, now they are making tremendous profits. Because Yes. market जम गया. Now even if they don't do anything, even to do advertise it, ठीक है, advertising and all वो करते हैं अभी भी, because उनको अभी भी उनका stronghold बनाना है. But still without advertising also उनका sufficient profits है. So very good market strategy by Jio. So हाँ, about working capital we'll discuss. Working capital ऐसा रखना कि आप देखो, दो चीज होती है, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी. और एसेट में भी दो टाइप होता है, करंट एसेट होता है, लॉन्ग टर्म एसेट होता है. करंट एसेट यानी आपके पास जो अभी पैसा आने वाला है वो, एंड लॉन्ग टर्म एसेट यानी आपका घर है ना, आपने खरीदा है घर, घर को इमीडिएटली बेच नहीं सकते ना, दैट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट. फैक्ट्री है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म एसेट. सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. बट ये बात समझो, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए आपको हाथ में पैसा चाहिए रहता है ना. इफ यू डू नॉट हैव मनी राइट नाउ, व्हाट विल हैपन, यू विल बी स्टार्व्ड, है ना. आप बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे. हम लोग क्या करेंगे, व्हेन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ना, आई विल गिव यू, है ना, वर्किंग कैपिटल एंड ऑल, इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स. कितना पैसा देखो, प्रॉफिट अब बाद में कमाओगे अलग चीज है. आप बोलोगे मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, 4 साल बाद मुझे इसका जब सारे फ्लैट्स बिक जाएंगे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, इतने में इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना, 10 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 15 करोड़ मुझे मिल रहे हैं, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है. ये सब बात की बात है. बट आपके पास अभी वर्किंग में कुछ है कि नहीं है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. व्हाट हैपन, आप भले ही आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियल, बिकॉज इफ यू डोंट हैव मनी, वो क्या आप डिले करते जाओगे, डिले करोगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ते जाएंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ा तो फिर आपका liabilities बढ़ेगा, and ultimately the construction cost itself will go so much, like what has happened in the construction sector in the last few years. What people did ना, even if you see आजकल civil engineers, if you see there is, है ना, पहले जब थे, I'm not sure many of you when you had taken admission in your BE, उस टाइम पे मार्केट वाज बूमिंग. आपका कब हुआ एडमिशन इन बीई सिद्धेश? 2017. 2017 है ना. तो उस टाइम पे मार्केट वाज, आई विल नॉट से बूमिंग, बट उसके पहले 2-3 साल पहले, यानी 15-14 के टाइम पे इतना अपॉर्चुनिटीज था मार्केट में, पीपल वेयर, है ना, बिकॉज व्हाट हैपेंड ना, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन वाज इन बूम. और दूसरी चीज क्या हो गई, देयर वाज नो अनसोल्ड इन्वेंटरी. फ्लैट बनते थे मार्केट में बिकॉज पीपल वर परचेजिंग. व्हाट हैपेंड देन, once there was unsold inventory, वो एक पूरा लूप बन जाता है. फिर लोगों के घर बन के रेडी हो गए, है ना, लालच आ जाता है, फिर बिल्डर्स ने भी बहुत ज्यादा घर बना लिए. फिर क्या हो गया, there were no takers for at that price. तभी उनका पैसा पहले प्रोजेक्ट्स में अटक गया, नया प्रोजेक्ट वो ले नहीं सकते. पहला प्रोजेक्ट अगर उनका निकल नहीं रहा तो उन्होंने फिर कम करके बेचे. अभी कम करे तो फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो जा चुका है उसमें उनको लॉस हो गया.
फिर लॉस रिकवर करने के लिए अगेन नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दे है ना, दे मेड अ हाइक, सो अगेन फिर अब वो मार्केटेबल नहीं हुआ, सो ये सारा पूरा एक लूप बन गया, एंड उसके वजह से क्या हो गया, देयरफॉर ना इफ यू सी आज अपने सेक्टर में प्रॉब्लम क्यों है, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, व्हाई देयर आर नॉट गुड जॉब्स है, अभी अभी मार्केट खुलने लगा है, स्पेशली लास्ट 6 months और 4 months ना पीपल आर गेटिंग जॉब्स, बट इफ यू सी स्पेशली जो कोविड बैच थी, उसके पहले की बैच थी, दे डिड नॉट गेट, है ना, उनको प्रॉपर वो नहीं मिला इनिशियली उनके लेवल पे जो प्लेसमेंट या क्या बोलेंगे उसको इनिशियल लेवल का उनको जो मिलना चाहिए था पैकेज, वो नहीं मिलता, इवन पीपल आई नो सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स वर वर्किंग इन 8000 5000 भी वर्क किया लोगों ने जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस, सो ये सारी चीजें हैं, सो यू शुड अंडरस्टैंड के मार्केट कैसा है, मार्केट का फोर्स टू फोर्स यू द मार्केट हाउ इट इज गोइंग टू बी, है ना, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल भले ही आप प्रॉफिट 10 साल बाद 5 साल बाद मेजर प्रॉफिट बना, लेकिन अभी आपके पास कुछ तो पैसा होना चाहिए ताकि आप बिजनेस रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज आप कर सको, इफ यू डोंट हैव मनी यू वोंट बी एबल टू कैरी आउट द रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहाँ इन्वेस्ट करना है ना, कितना इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में कितना करना है, डेट में कितना करना है, दीज ऑल डिसीजंस नीड टू बी मेड ना, शेयर मार्केट में भी जो इन्वेस्ट करते हैं ऐसे नहीं करते ना, दे डू अ प्रॉपर स्टडी और फिर इन्वेस्ट करते हैं लोग, है ना, people have made fortunes out of share market, many people I know, some of my friends also, they had done proper study and they पूरी तरह उतर गए उसमें and they फिर कमा लिया उन्होंने, है ना, and they have made huge properties, है ना, I will suggest all of you to see this series, there is a very good series, I'm not sure which channel it is, हर्षद मेहता का सीरीज है ना, किसका है, स्कैम का, Scam 1982. हाँ किसने देखा है वो, Yes, sir. देखा है. नहीं देखा है, I'll request all of you to just see it because है ना, you'll get a lot of उसने जैसा पैसा रेज किया है ना, ऑफ कोर्स हमने कोकन रेलवे के जब केस स्टडी उसमें भी उसका जिक्र है थोड़ा सा, उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, तो हाउ फ्रॉम अ नो मैन ही बिकेम, ऑफ कोर्स द मेथड्स ही यूज एंड ऑल दैट इज अगेन डिबेटेबल, बट अगेन I'll request all of you just see this movie or whatever it is series, देख लो, अच्छा you will also feel है ना, how you can raise the various or how investment decisions, financial decisions you can take and how, है ना, how you have to be very, है ना, देखो आप अगर रिस्क टेकिंग नेचर के हो तो इवन दो यू विल मेक इनिशियल लॉसेस बट समवेयर डाउन द लाइन, है ना, प्रॉपरली अगर आप ये करोगे तो यू विल मेक प्रॉफिट्स, एंड जस्ट 1 minute. ओके फाइन, हाँ, सो एसेट्स मतलब अगेन एसेट मतलब क्या है, जो पैसा अपने पास अभी है या अपने पास आने वाला है, दैट इज एसेट ना, समथिंग विच इज विथ यू और विच इज गोइंग टू कम टू यू, दैट इज एसेट, एसेट में क्या है, कैश होता है आपके पास, पैसा है घर में, दैट इज एसेट, है ना, सेविंग्स है दैट इज एसेट, अकाउंट्स रिसीवेबल जो पैसा आपके पास आने वाला है, आपने किसी को कुछ उधार दिए है या किसी को कुछ गुड्स सेल किए वो आपको पैसा देगा, दैट इज एसेट्स, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री आपका कुछ सपोज यू आर मेकिंग, सपोज आप जस्ट टेक सम वेरी लेमन्स एग्जांपल ना, आप समझो आपका फर्नीचर का दुकान है और टेबल कुर्सी बनाते हो आप, है ना, तो आपने टेबल कुर्सी बना के रेडी, अभी वो बिकी नहीं है बट उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा जब वो बिकी, सो दैट इज आल्सो एसेट, राइट, उसके लिए देयर इज फिक्स्ड एसेट, जैसे अभी फैक्ट्री है आपकी, दैट इज फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, ये सारी चीजें है, एंड लायबिलिटीज, ऑलवेज रिमेंबर एसेट शुड बी, आपका जो करंट एसेट शुड बी मोर देन करंट लायबिलिटीज, ये हमेशा होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर आपका प्रॉब्लम है, हम रेशियो एनालिसिस जब करेंगे तो ये सारे रेशियोज हम निकालते हैं, बेस्ड ऑन द रेशियोज व्हिच वी गेट वी डिस्कस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, फाइन, so based on the various ratios, based on the various ratios we again
we again discuss or we again find out the financial stability of a particular firm. लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी है, करंट आपको किसी को पैसा देना है, आपने किसी से उधार लिया, उसको पैसा वापस देना है, या किसी ने आपको जैसे आरएमसी का कंक्रीट आपने मंगाया अपने साइट पे, आरएमसी का पेमेंट करना है ना, अभी करना है, दैट इज करंट। अगर बाद में करना है, जैसे आपने किसी से आपके फ्रेंड से लिया, उसको बोले आपने कि आपको 5 साल बाद पैसा दूंगा आपका, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक, करंट लायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट है बिकॉज करंट एसेट से मैप की जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म एसेट से मैप। तो ऑल दीज डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट। फाइनेंस में एरियाज क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केट्स ऑफ यूजर्स एंड सेवर्स ऑफ फंड, मनी मार्केट्स, कहाँ से पैसा मिलेगा आपको, यू हैव टू नो द वेज ऑफ टैपिंग द सोर्सेज ऑफ फंड, है ना, कहाँ से पैसा उठाना है ये आना चाहिए। उठाना इन द सेंस लीगली उठाना है, फाइन, डोंट टेक मी रॉन्ग। तो पैसा कहाँ से उठाना है, कहाँ से पैसा टैप करना है, कौन आपको पैसा दे सकता है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। मेनी पीपल दे फेल इन दिस ट्रैप ऑफ इजी मनी ना, जैसे आजकल आपको टेलीमार्केटिंग के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, दे रेडीली प्रोवाइड यू लोन्स, है ना, कि नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, सिविल खराब हो तो भी चलेगा, आप आके पैसा लेके जाओ। क्यों देते, अपने से मोहब्बत इसलिए नहीं देते वो, है ना, दे डू नॉट लव अस, उनका खुद का कुछ they want their profit also ना, so their money is multiplying, है ना। so इवन जैसे ये मुथूट फाइनेंस है, डिफरेंट फाइनेंशियल कंपनी थे, गोल्ड पे लोन देते हैं, आप गोल्ड आके रखो एंड उस पे आप लोन पैसा भरते रहो, अगर आप उसका ब्याज दोगे तो ठीक है, अगर नहीं हो दैट दे विल कॉन्फिस्केट योर गोल्ड, है ना। तो दोनों केस में इनका प्रॉफिट, बिकॉज गोल्ड का भाव भी ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, गोल्ड का भाव भी बढ़ते जा रहा है, तो दोनों केस में इनका प्रॉफिट। सो सच टाइप ऑफ डिसीजन यू नीड टू मेक। कैपिटल मार्केट्स, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, है ना, ये जब बैलेंस शीट वगैरह हम बनाएंगे तब विल डिस्कस दिस इन डिटेल। तो प्रिफर्ड स्टॉक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है ना, पीपल साइन बॉन्ड, पीपल इशू बॉन्ड्स, है ना, गवर्नमेंट, जैसे कोकन रेलवे के इसमें भी बहुत सारे बॉन्ड्स वर इशूड, पीपल को शेयर दिया गया था, बॉन्ड्स दिए गए थे, तो a lot of things, a lot of ways of raising the finance are there. Financial services, design and delivery of financial advice and products to individual businesses, managerial finance है ना, इसके लिए है ना MBA and all these people are required. What happened ना, now again the trend of recruiting MBAs has gone up because civil engineers के अंदर वो skill नहीं है कि वो पैसा, देखो इंजीनियरिंग स्किल एक अलग चीज होगी, लेकिन पैसों को मैनेज करना इज अ डिफरेंट थिंग। अब MBA पर्सन विल नॉट नो हाउ टू, है ना, कोर MBA है, बीकॉम से उसने BA किया है, ग्रेजुएशन किया है, फिर MBA किया है, MBA इन फाइनेंस किया है, so he knows how to manage, he doesn't know what is the setting time of cement, what is the delivery time which will be required, or what happens if my cement bags are stored, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं, but he knows, he understands the finance, उसको पैसे के बारे में मालूम है, so he will be paid more than people like you and me, because we do not know how to play with the money और how to, है ना, मैं पैसों इधर घुमाना हमको नहीं मालूम। तो this is a very grey field, this is a very good field which you can go, you can establish yourself now, है ना, people companies, especially good companies, है ना, they have become aware and they are recruiting people who have a civil background, MBA in finance के, लेकिन उनको civil चाहिए अगर construction company से, और even in construction management आप जो कर रहे हो वो field, या फिर even निकमार वगैरह के जो courses है, people are recruiting those kind of people because they have a proper sense of finance, है ना। तो this is also important, engineering knowledge according along with the financial, can say education is also important, financial, because ultimately देखो everything boils down to finance, सब कुछ आके फाइनेंस पे, पैसे पे आ जाता है ना। अगर आपको आप जॉब क्यों करते हो, है ना, you have this engineering skill, why you do job, to earn money ना, everything comes down to finance. So a well developed financial system is a hallmark and essential characteristic of any modern developed nation. So in India we have a very good system, है ना, as you compared with other countries, especially African countries। अभी देखो श्रीलंका का बहुत न्यूज़ चल रहा है, have you heard about श्रीलंका? Yes, sir. Yes, sir. क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ उधर, anybody can just throw some light on this? Anyone? डेब्ट हो गया था सर उनके ऊपर, मतलब loans and all that, the policies which they used since year, they means organic farming for they have gone, and this policies which were made by the government were not that up to the mark, so that was a failure. हाँ, because Sri Lanka is a small country ना,
जैसे है ना, एक छोटा बच्चा रहता है, एक छोटे बच्चे को कैसे आप थोड़ा सा भी तकलीफ, थोड़ा सा भी उसको पेन हुआ तो ही विल स्टार्ट क्राइंग ना। एंड मेच्योर्ड पीपल लाइक यू, जैसे अपन इंडिया है, हम अगर हमको लॉस भी हो इकोनॉमिक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ। बट श्रीलंका का क्या है, बिकॉज इट इज अ स्मॉल कंट्री, इट गॉट ओवरबोर्ड विद सम फाइनेंशियल डिसीजन, है ना, कुछ डिसीजन उन्होंने गलत लिया, जो मिनिस्टर्स थे या जो भी थे, डिसीजन गलत लिया, एंड देन द एंटायर नेशन वाज प्लंज्ड इनटू फाइनेंशियल डेट। फाइनेंशियल डेट में पूरा नेशन, बिकॉज देखो क्या है, ऐसा नहीं है ना, अभी देखो इंडिया पे भी कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का इसका उसका कर्जा है, बट वी, है ना, देखो दो चीज होती है इसमें, आप व्हाट यू आर इम्पोर्टिंग, आपका जो फॉरेक्स एक्सचेंज है, अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यू फॉर यू, बट अगेन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड। आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, जीडीपी एंड ऑल, आपको मालूम है कैसे 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 जीडीपी इज डिसाइडेड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, Yes, sir. कैसे करते हैं बताओ, जीडीपी कैसे फाइंड, जीडीपी का जो वैल्यू आता है ना, 3%, 4%, -2, -4, कैसे आता है वो? इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन ना, यू कैन गो इन विकिपीडिया, आप उसका डिटेल में सर्च करो, आई जस्ट गिव यू सिंपल। देखो जितना अपना एक्सपोर्ट हो रहा है, देखो अपन इंडिया में, ऑफ कोर्स इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बट है ना, स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड दिस, इंडिया एंड चाइना का डिफरेंस समझो तो आपको बात समझ में आएगी। इंडिया से हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, वी एक्सपोर्ट से Textile, culture. टेक्सटाइल है, मेजर टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, these are the major things which we export. And what we import, we import electronic items, we import defense, you can say requirements, ये सारी चीज import करती। देखो आप अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइस, ऑनियन, इवन है ना मैंगो एंड ऑल एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉर इफ यू कंपेयर द वॉल्यूम, एक कार्गो का जो वॉल्यूम जाता है बाहर, है ना, because देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो दोनों में लगेगा, एक कार्गो का जो लोड जाता है बाहर और जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो अपने को जो एक्सपोर्ट करने में है ना, हम चिंदी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, टू बी वेरी एकदम अगर लेमैन लैंग्वेज में बोल, चिंदी चीजें इन द सेंस, बिकॉज वी है ना, वी हैव नॉट, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही गेव दिस ऑफ आत्मनिर्भर भारत, है ना, तो वी हैव नॉट बिकम आत्मनिर्भर टिल नाउ, व्हाट हैज हैपेंड ड्यू टू दैट ना, we have to depend on other countries for our various needs, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स नीड्स है, इवन अपने मोबाइल कंपनीज जो है, we say it is make in India, but जो उसके अंदर का जो chips and all these things are required, still a lot of that is imported from countries like China and other countries, Japan, जो technically advanced। So what happens, छोटी सी चीज है, वॉल्यूम में बहुत छोटा है, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, हम बड़े बड़े कंटेनर में बेचते हैं ना, ट्रक्स ऑफ ऑनियंस एंड पोटैटोज एंड ऑल दिस वी एक्सपोर्ट, ट्रक लोड जाता है, बट उसका जो हमको पैसा मिलता है कंपेयर टू, है ना, आर इम्पोर्ट्स इज क्वाइट लेस, है ना। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज सम ऑफ ऑल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और जो डोमेस्टिक हमारा जो ये खर्चा होता है वो, तो एक सिंपल फॉर्मूला है उसका, so GDP which is positive when our exports are more, so of course India has done a very गुड जॉब इन द, है ना, लास्ट फ्यू इयर्स में नहीं बोलेंगे, बट एटलीस्ट लास्ट फ्यू डेकेड्स में, बट स्टिल, है ना, स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप इज देयर फॉर अस टू इम्प्रूव। सो फाइन, सो फाइनेंशियल, हाँ, well developed financial system is hallmark of any country. So if you compare these countries, ना, China is again very strong, ना, China, देखो रशिया में भी, Russia is not as strong as compared to China, even though it is big in volume and all, बट चाइना ने अपनी पॉलिसीज एंड ऑल ऐसा करके रखा कि, है ना, अगर उसको पूरे वर्ल्ड ने भी सैंक्शन कर दिया, स्टिल इट विल बी एबल टू सर्वाइव, है ना। तो करियर अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल एनालिसिस, बहुत अच्छा डिमांड है इसका भी, एंड अगर कंस्ट्रक्शन फर्म है तो इफ यू आर अ फाइनेंशियल एनालिसिस और कंस्ट्रक्शन फर्म, वन ऑफ आवर स्टूडेंट ना, he is not working in core financial analysis, but he is working in this contracts and accounts, है ना, जय कुमार जो है, जय कुमार कंपनी है, so he is at a very senior post in that, अपना एमई स्टूडेंट भी पास आउट नहीं हुआ है, इतना बिजी रहता है, उसको प्रोजेक्ट करने ही टाइम नहीं मिलता है, तो he is very close to the owner of जय कुमार, है ना, जो आई एम नॉट रिकलेक्टिंग हिज नेम, जय कुमार के ओनर है, उनसे बहुत क्लोज है, द स्टूडेंट नेम इज कमर आजम। सो सारे बिडिंग एंड ऑल जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, बिकॉज बिड्स कैन नॉट बी ओपनड बिफोर हैंड ना, दे हैव टू बी स्ट्रिक्टली
बिकॉज कॉन्फिडेंशियल है ना, अगर मेरी बिड कम है या ज्यादा है तो इट माइट हैम्पर द प्रोस्पेक्ट ऑफ मी गेटिंग अ प्रोजेक्ट और नॉट, स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो। तो ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एनालिसिस यू शुड नॉट बी, देखो लो बिड के चक्कर में ऐसा नहीं चाहिए कि नुकसान कर दे कंपनी का, ये भी होना चाहिए। कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो, है ना। देखो आज अगर जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज पांडुरंग गिव्स, आई गिव पांडुरंग 100 rupees, है ना, and after 5 years Pandurang comes and gives me 100 rupees back, will I accept that 100 rupees? अरे No, बोलो। sir. No, no, no. No, sir. You will है ना, expect बिकॉज some टाइम interest. वैल्यू ऑफ मनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। आज जो 100 रुपए में, ठीक है पांडुरंग इज माय स्टूडेंट, आई एक्सेप्ट इट, बट इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। Yes. आज जो 100 रुपए में चीजें खरीद सकते हैं, जो 5 साल बाद अगर आप 100 रुपए लेके मार्केट में जाओ वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। सो मनी जो है आज आज के दौर में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग बाय द डे, है ना। आज का जो परचेजिंग पावर, आज 100 रुपए में जो चीजें आएगी वो 10 साल बाद या 15 साल बाद वो सारी चीजें नहीं आ पाएंगी, है ना। आवर अंकल वाज देयर, ही यूज्ड टू, है ना, he used to tell us a story. He used to tell us कि फर्स्ट जब हम जाते थे मार्केट में 1947 जस्ट पोस्ट पार्टीशन जब जाते थे तो सैलरी उनकी 16 रुपीज सैलरी थी मंथ की, एंड 5 रुपीज में पूरा मार्केट का सामान पूरे महीने का आ जाता, इतना सस्ता, मतलब उस टाइम पे इतना वैल्यू कम था, और रेदर आई से वैल्यू ज्यादा था रुपीज का, है ना। 5 रुपए में कैन इमेजिन एंटायर पूरे महीने का सामान आ जाता था, राशन वाशन सब सब सब। We can imagine आज 5 रुपए में कुछ भी नहीं आएगा, even a small toffee would be, you cannot get a good toffee in 5 rupees. Are you understanding my point? So purchasing power of money is decreasing by the day. What you can purchase today by 1 rupees will not get the same things the next year. So that's why capital budgeting is important. जो हमारा प्रोजेक्ट है नेट, देखो हमने अगर इन्वेस्ट किया 100 करोड़ इन्वेस्ट किया एक प्रोजेक्ट में, 10 साल बाद हमको अगर उसको 150 करोड़ भी मिल रहा है तो भी शुड नॉट इन्वेस्ट, बिकॉज आपको 10 साल बाद 50 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन आपका जो 100 करोड़ की आज वैल्यू है, 10 साल बाद की वैल्यू 200 करोड़ हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, correct. जस्ट बेस्ड ऑन नेट जो वैल्यू अपने को दिख रही, ज्यादा बढ़ के दिख रही, उस पर नहीं जाना चाहिए। व्हाट एक्चुअली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इन्फ्लेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द डिस्काउंट रेट एंड ऑल, ये सब करने के बाद जो हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिलता है उस पर हमको फोकस करना है। तो कैश मैनेजर है, प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर है, क्रेडिट एनालिस्ट, these all peoples are there. फाइनेंस इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी करते हैं इसमें। दो चीज आती है इसमें, एक होती है अकाउंटिंग एंड होती है इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग मींस व्हाट, क्या क्या हमारे फाइनेंस है उसका रिकॉर्ड रखना है ना, सिंपली रिकॉर्ड कीपिंग इज अकाउंटिंग। व्हाट ट्रांजैक्शंस वी विल मेक और वी हैव ऑलरेडी डन, उसमें फिर एंट्रीज होती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, लेजर होता है, जर्नल होता है, ऑल दीस थिंग्स आर देयर, विल नॉट गो इन टू मच डिटेल टू इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। तो अकाउंटिंग इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखो इज अ ब्रॉडर टर्म, आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्ट ओनली, उसमें सारी चीज आप करते हैं। अकाउंटिंग में जस्ट क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है, राइट। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वेरियस थ्योरीज आर एप्लीकेबल, प्राइसिंग थ्योरी, सप्लाई डिमांड एनालिसिस करते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, है ना। Information of the economic and financial environment in which the company operates for sound financial decision, inflation rate, exchange rate का भी एक प्रॉब्लम हमारे पास है ना, where we are working in a foreign country और फिर वो पेमेंट डॉलर में करता है या अदर करेंसी में करता है, अपने को इधर इंडियन रुपीज में इसका क्या इम्पैक्ट है, वो सब भी हम एक न्यूमेरिकल में देखेंगे। ऑल ऑफ these factors must fit into the financial decisions, ठीक है। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस पे होता है ना, एक के बाद एक, है ना। जैसे है ना, यू डोंट वेव ऑफ लास्ट ईयर्स दिस, जस्ट एक्रू मतलब कंटिन्यूएशन में होता है कैश बेसिस में, एज एंड व्हेन दे ऑफर, है ना। कुछ लोग कैश बेसिस में प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं एक्रू पहले से करना है, पहले से रिकॉर्ड रखना, यानी समझो है ना, एक कंपनी है, कैश बेसिस पे क्या हो गया, इमीडिएट ट्रांजैक्शन ही देखेगा, एक कंपनी वो पूरा अपना हिस्टोरिकल डेटा भी रखेगा, तो दैट इज एक्रूअल बेसिस। सो अकाउंटिंग क्या होगा, सिर्फ पैसा देखेगा, है ना, एक्रूअल बेसिस पे कितना नेट कितना हो रहा है। तो देयर आर टू व्यूज, अकाउंटिंग व्यू एंड फाइनेंशियल व्यू। कैश बेसिस पे अगेन कितना आउटफ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, दैट विल बी सीन। सो गोल क्या होना चाहिए, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो एक क्वेश्चन आता है ऑफ कोर्स एग्जाम में, जनरली इट इज आस्क्ड, कंपेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो रिलायंस का एग्जांपल आप दे सकते हो, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिलायंस जो यू कैन गिव. सो कॉर्पोरेशंस कॉमनली डिफाइन प्रॉफिट्स एज अर्निंग पर शेयर. एक शेयर है ना, एनी अमाउंट यू, शेयर मींस एनी अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, उस पे आपको कितना मिला. 100 रुपए लगा है, मुझे 2 रुपए मिला ना, तो मैं अर्निंग पर शेयर इज 2 रुपीज पर शेयर. ठीक है, 1 शेयर गिव्स मी हाउ मच. तो अर्निंग पर शेयर इट क्रिएट जनरली. प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है वो देखते हैं, है ना. अर्निंग पर शेयर इग्नोर्स 2 क्रिटिकल फैक्टर्स, द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न्स. पैसा कब मिल रहा है नहीं देखते हम, पैसा लगा दिया 2 दिन बाद निकाल लेते, काफी हो गया. रिस्क फैक्टर फेसिंग द फर्म इन करते हैं. तो प्रॉफिटेबिलिटी मोर, द देखो, आई हैव टोल्ड यू सिंपल लॉजिक ना ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर. if he wants more runs, if he wants to hit a six, there is more risk involved. if he plays a ground shot, profitably less चाहिए तो less risk involved, है ना. तो इसलिए different type of shareholders are there, है ना, that we'll discuss. तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स वर्सेस सेविंग अकाउंट. देखो सेविंग अकाउंट किसी का है ना, सेविंग अकाउंट में उसने पैसा डाल, इसके पास समझो किसी के पास 10 करोड़ रुपए है, उसने अकाउंट में डाल के रखा है, 10 करोड़ रुपए डाल दिया, उसको वाले में 6% का इंटरेस्ट है, तो उसको अगले साल 6 करोड़ उसमें मिलेगा, उसको मालूम है, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा वो 30%, फिर भी उसको 4 करोड़ समथिंग उसको मिलेगा, वो तो उसको मिलना ही है ना, अनलेस द बैंक डूब जाए या है ना वो सब हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट. तो बट 4-4.5 करोड़ का तो अश्योर्ड प्रॉफिट उसको दिख रहा है. अनदर थिंग इज यू विल थिंक नहीं, व्हाई शुड आई जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय ना, आई शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक. तो इट मे हैपन दैट 100 करोड़ में उसको 50 करोड़ का प्रॉफिट मिले, है ना. दिस हैज हैपेंड स्पेशली इफ यू सी. पहला जब पेंडेमिक का जब लॉकडाउन लगा था, शेयर मार्केट एकदम से गिर गया था, है ना. इफ यू आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैड ऑब्जर्व्ड, बीएससी का जो इंडेक्स था, इट वेंट डाउन बिलो 30,000 का. बीएससी इंडेक्स इज, इट इज अ कम, है ना, क्या है, 30 जो बड़ी कंपनीज है उसका वो, है ना, उसका परफॉर्मेंस है, दैट इज लिस्टेड इन द बीएससी. निफ्टी में 50 कंपनीज का, विल नॉट गो इन टू मच ऑफ डिटेल, बट जस्ट समझो इसका परफॉर्मेंस. तो इट वेंट बिलो 30,000 जो बीएससी इंडेक्स है, बट हार्डली इन 2 years टाइम इट हैज गॉन अबाउट 60,000. जो वो टाइम पे जिन्होंने 10 करोड़ लगाया था, उनको आज के दौर में 20 करोड़ मिल गए विद इन 1.5 years. बस समझ रहे हो, एंड इवन मच मोर देन दैट. ठीक है, सेम केस गोज विद द क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल ना. सो लॉट ऑफ रिस्क इज देयर, बट पीपल हु एंजॉयड प्रॉफिट have enjoyed profit, है ना. people have even earned 100 times also, कुछ people. but I'll Hello, sir. Please, can you explain crypto? crypto Yes, for knowledge. is ना, I'll say sincerely appeal not to invest in crypto, because है ना, ये क्या होता है ना, crypto is an imaginary Digital currency money. ना. हाँ, Digital बट currency. इसमें प्रॉफिट मिला तो बहुत मिलता है, बट रिस्क बहुत ज्यादा है. so it's Risk factor ज्यादा है. हाँ, Correct. it's Yes. better not to invest in that, because share market is a safer game. If you want to play in the share market, is a very good because अपना इंडिया का share market is quite है ना, well established. और ऐसा कुछ सडनली ब्लड बात होता नहीं है कि अचानक से कुछ 10,000 20 से, है ना, कोई कंट्रीज में होता है, वैसा नहीं. इंडिया इज फाइनेंशियली इन दैट वे स्ट्रॉन्ग. ओनली थिंग यू शुड टेक प्रॉपर कंसल्टेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट. जो जानकार है उनसे आपको समझ के ये करना है. मेनी पीपल गाइड अस. क्रिप्टो का क्या है, बिकॉज एवरीथिंग, मेनी थिंग्स आर हिडन. वी कैन नॉट से which will go up and which will go down. Sector. It may happen that 1% है ना, 100 में से 1% को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले एंड 99 को माइनर लॉस मिले, बट उनका माइनर लॉस क्यूमुलेटिवली उस 1% से कम हो जाता है. बात समझ लो. लाइक फॉर एग्जांपल somebody got है ना, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ उसका जो, इट इज नॉट स्टिल क्लियर, है ना. एंड इसलिए इंडियन गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट है, इट इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन. हाँ, वो उसी वजह से, बिकॉज उसका कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा नहीं है. स्टिल मेनी थिंग्स आर हिडन. सम कंट्रीज ने तो उसको अपना लिया, बट स्टिल, है ना, प्रॉपर चैनल से वो नहीं है. सो इट इज बेटर टू वेट फॉर सम टाइम बेटर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो. so better not to invest at this moment of time, because even मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया 15,000 20,000 25,000 ऐसे छोटा ही इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अभी भी उनका जो मार्केट ट्रेंड है, एंड व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज, दे आर सफरिंग 4 to 5,000 ऑफ लॉस. जो जिसने 25,000 लगाया था, उसको अभी 18 या 20,000 के बीच में उसका करंट में मार्केट वैल्यू इन 3-4 months और 5 months.
many factors are there again. Russia ka invasion and all this also contributed. So a lot of things are there, but overall if you see, some people are tremendously profited, major people are in minor loss. ऐसा उसका फंडा है. So still when once it is clear, unless it is clear, we should refrain from abstain from investing in that. So investing in stocks, saving accounts. So saving accounts is an assured profit. Stocks may people will get more profit. So more risk, more profit. Stocks may be more profitable but lesser, but are riskier. Saving on less profit but are less risky or safer. So people are different, है ना. कुछ जैसे retired people हैं, उनको है ना, and they just have to invest and they will get an assured return. So they'll prefer this saving account. लेकिन जो young people है, जिनको अभी पैसा बनाना है ना, इनको अपनी लाइफ जीनी है, they might go for this kind of investments. So wealth maximization is an important thing. As Jio का example, always remember this example, it will be clear to you. So it considers कितने, जैसे जियो ने कंसिडर किया था, मुझे जो पैसा कम मिलेगा, फर्स्ट 6 मंथ में मुझे लॉस है, उसने बर्दाश्त, उसके पास बर्दाश्त करने की क्षमता थी, है ना. जियो, रिलायंस इज अ बिग नेम ना, इट हैड अ वेरी बिग यू कैन से, एंड ऑफ कोर्स उसने बहुत सारा चीज उधार पे लिया था, तो है ना, व्हेन द मनी केम इट इमीडिएटली इसका जो डेट था पूरा का पूरा उसने क्लियर कर दिया विद इन 2 मंथ्स. सो दैट इज द केस, है ना. सो टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स इज देयर, risk ignored by EPS is again taken care by wealth. So wealth maximization is a proper approach. People है ना, financial managers today they are going for wealth maximization rather than going for profit maximization. So wealth maximization is a more comprehensive goal for the firm, its manager and employees. So goal of financial manager, it should be is consistent with social responsibilities of the firm. तो ऐसे ही है ना, just for the sake of making profits should not work. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ऐसा ही नहीं है कि वेल्थ ही मैक्सिमाइज हो रहा है और जो इनकम है कुछ इनकम ही नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए. तो इट शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस. सो ये नहीं होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल एंड ऑल, है ना. आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम है, इवन इन इंडिया स्पेशली इफ यू सी एयर पोल्यूशन और ये सब प्रॉब्लम्स है. सो पीपल इन द है ना, in the for the purpose of getting quicker money, they are just bypassing some rules and regulations, and what is happening, it is endangering the health of people, especially जो है ना, सतीश सर might agree with me on this, जो है ना, जो sectors है uncontrolled pollution जो होता है, and people are ethically Yes. they are not thinking, they are just thinking on profit, है ना. जो बड़े बड़े कंपनीज भी है, बड़े बड़े फैक्ट्री, स्पेशली ये जो तलोजा एंड ऑल एमआईडीसी का एरिया है, now it has reduced considerably, but if you see 5-10 years back, na, lot of pollution and lot of smell and all was there, and it was very hazardous to the people living there. Interest, Day by day it is now it has reducing, sir, reduced, now it because has urbanization. reduced considerably, and वो सब अभी रसायनी वो साइड में शिफ्ट हो गए शायद, है ना. Yeah, correct. So now, है ना, government has also become proactive and all, and it has taken a lot of efforts for ensuring that the people's health and safety, the social ethical goals should not be compromised for the just for the raising of the money. So interest of short-term compensation all should be given for people who are affected. So कैसा होना चाहिए, not too much risk but a good return should be there. जैसे क्रिप्टो का बात आता है ना, बहुत ज्यादा रिस्क है, रिटर्न भले ही ज्यादा है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, so you should avoid. Medium risk and medium return, that is the optimum. कम रिस्क है, कम रिटर्न है, then it is not good, है ना. कम रिस्क है, मिनिमल रिस्क है, बट रिटर्न ही कुछ मतलब इट इज जस्ट, है ना, टिप ऑफ एन आइसबर्ग, so also not good. So just one example, suppose I purchased 20,000 shares of ₹100 face value, so total मेरा 20 लाख का शेयर है for company, है ना. company makes an annual profit of 10%. if the company returns with 10% profit on my shares, then मुझे 2 लाख रुपए कंपनी दे देगा, है ना. मैंने 20 लाख लगाया था, 20 लाख में से 2 लाख मुझे मिल जाएगा. So my current share in company is 20 lakh, but suppose if the company gives me 5 lakh and returns 5% reserve surplus, तो कितना हो गया, 1 लाख मुझे वापस मिलेगा, लेकिन मेरा share in the company will be increased. So now instead of 20 lakhs, now I am investing 20. Now my net, you can say net holdings in the company is 21 lakhs, and hence
I will be in a strong, है ना, business is, I have given you just a small example. 5%, 10% is any profit. Generally, they are in the tune of 50%, 60% also, even 100% in some cases. So, जितना ज़्यादा पैसा मेरा इसमें रहेगा, that will be multiplied. So, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना. The next cycle, whatever profit the company makes will be better results on 21 lakhs, है ना. मेरा जो 20 लाख पे मुझे जो प्रॉफिट मिलता था, अभी 21 लाख पे मुझे से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. तो मुझे हर साल जो 10-10 लाख मिलता था, नाउ, है ना, it will now go on increase. So this is the simple logic behind that. So wealth maximization versus profit maximization. Objective of the firm, primary goal of any firm is to maximize stockholders. कोई भी ये नहीं करेगा, है ना, unless जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे अभी जैसे some people है ना, जस्ट जो दिहाड़ी ये होते हैं, जस्ट local vegetable sellers होते हैं, they will purchase the vegetables and they will sell the vegetables. उनका purpose is not to build a firm. Their just purpose is to earn some money through it. या जैसे दिवाली के क्रैकर्स जो लोग लगाते हैं, they will purchase the crackers जो रास्ते पे लगाते हैं, क्रैकर्स परचेस करेंगे, अपना प्रॉफिट लगे बेच देंगे. They don't want to establish वो उनको मैन्युफैक्चरिंग और उसका, they don't want to be retailers first. So their purpose, their aim is profit maximization. Goal, अगर आपको कंपनी चलानी है तो your goal should be wealth maximization. Timing of profit maximization does not take into account the timing of earnings. Wealth maximization does. Wealth maximization takes into account risk. Profit maximization risk नहीं लेता है. Dividend payoff. Profit maximization क्या करता है, सारा का सारा डिविडेंड मतलब जो अर्निंग पर शेयर मिल रहा है, सारा का सारा वापस दे देता है. प्रॉफिट में वेल्थ मैगजीन क्या करेगा, इट विल रिटेन सम रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इट विल यूज इट इन द नेक्स्ट फ्यूचर बिजनेस. तो क्वालिटी फैक्टर्स है, स्टॉक प्राइस, दीज ऑल थिंग्स आर देयर. तो मैनेजमेंट वर्सेस स्टॉक होल्डर्स. सो मैनेजमेंट सर्व्स एज एन एजेंट टू स्टॉक होल्डर्स. जो स्टॉक होल्डर्स हैं, दे आर जस्ट लेमैन, वो जो पैसा लगाएंगे. तो मैनेजमेंट है, अगेन व्हेन विल डिस्कस द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, एलोकेशन ऑफ फंड्स, है सब होना चाहिए. पैसा कौन से प्रोजेक्ट में कितना देना, अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10-12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट में अभी रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट नीड है, उसको पहले दे दो. जहाँ क्रिटिकल एक्टिविटीज चल रही है, वहाँ पहले पैसे दो. एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कहाँ से पैसा लेना है, कितना लेना है, दिस ऑल इज इम्पोर्टेंट, है ना. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज इम्पोर्टेंट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, 100 रुपीज टुडे इज मच मोर देन 100 रुपीज टुमारो. आज के दौर में जो 100 रुपए से मैं खरीद सकता हूँ, 5 साल बाद 100 रुपए में वो चीज मुझे नहीं आएगी. दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी ना. लिक्विडिटी यानी कितना पैसा मुझे रोलिंग में रखना है ना, कितना पैसा प्रॉफिट में रिटर्न करना है. मैचिंग प्रिंसिपल, है ना. मैचिंग मतलब जो आप देखो, आपको अगर लायबिलिटी है, आपने किससे कर्जा लिया हो, तो आपका ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए आप घर बेच के पैसा वापस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो शॉर्ट टर्म एसेट शुड बी मैच विद द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. जो आपका पैसा आने वाला है, आपके पास जो कैश आपकी कंपनी में पड़ा हुआ है, दैट मनी शुड बी यूज्ड फॉर सर्विसिंग द करंट लायबिलिटी. जो आपको पैसा बाहर देना है, यू शुड नॉट सेल योर परमानेंट जो आपका फिक्स्ड एसेट्स है, उसको बेच के यू डिड नॉट मैच योर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. छोटी मोटी लायबिलिटीज को आप है ना, बड़ी चीज घर बेच के या फैक्ट्री बेच के नहीं पूरा करोगे. पोर्टफोलियो डालोगे. देखो बड़ी जो कंपनीज है, टाटा, रिलायंस एंड ऑल, दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मतलब उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया. ऐसा क्यों करते थे? देखो अभी रिलायंस इसमें भी आया, मोबाइल इसमें भी आया, फिर अगेन इट हैज ऑयल, इट हैज मेनी अदर सेक्टर्स. कंस्ट्रक्शन में भी है रिलायंस रियलिटी एंड ऑल, स्मार्ट होम्स में है. तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, अगर एक बिजनेस में लॉस होता है, दूसरा बिजनेस इज देयर फॉर टेकिंग केयर ऑफ द लॉसेस, है ना. So diversification is important. So इसलिए I will also request you, don't be stick to one particular, है ना, don't एक ही in source of income पे stick मत रहो. You should diversify your sources of income. है ना, salaried people should not stick to just मुझे salary मिल रही, ठीक है, you will enjoy, but what happens if your job goes? Suddenly अगर आपको कंपनी निकलती है तो क्या करोगे? Unless you search for new job, unless, है ना, तो it is a very, can say, अगर आपको, है ना, really you need to make profits, so you should diversify your investments. वैल्यूएशन करना है, आज के दौर में क्या वैल्यू है कोई एसेट का, ये भी आना चाहिए.
So again, different theories are there. Will not go into much details of these theories. Ethics is important, है ना? देखो, जब आपका थ्योरी पार्ट क्वेश्चन में पूछता है तो जनरली क्या पूछता है, कोकण रेलवे का वो जो केस स्टडी है 10-12 मार्क के लिए पूछता है एंड शॉर्ट नोट्स पूछता है। तो फाइनेंस में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उसमें से क्या आपको प्रोड्यूस करना है आपके क्वेश्चन पे, आपके आंसर शीट में, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना? बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग यू कैन नॉट राइट ड्यू टू द पॉसिबल टाइम, टाइम नहीं बचता। तो जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना। तो विल डिस्कस दिस व्हेन यू कम फिजिकली। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन, है ना, कहाँ डे टू डे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कहाँ पैसा अपने को आना है जाना है, इसका कैलकुलेशन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन होना चाहिए, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, किससे लोन लेना है, कितने रिलीज लेना है, भाड़े पे क्या लेना है, शेयर्स कितना होना चाहिए, बॉन्ड्स कितना होना चाहिए, डेट कितना होना है, सब सब सारे चीजें होती है। So again, just these last few slides are there, 2 slides this will discuss and we'll stop for today. Forms of organization देखो, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी खुद की कंपनी चालू करो। एडवांटेज क्या है, फ्रीडम है, जब चाहे कंपनी, जैसे आपकी खुद की दुकान है, जब चाहे दुकान चालू करो बंद करो, सिंप्लिसिटी है, लो स्टार्टअप कॉस्ट है, टैक्स बेनिफिट्स है, ये एक फायदा है। डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बहुत सारे लोग आपसे उधार में लेके जाएंगे, आपको आपका पैसा मिलेगा नहीं, और आपको बिजनेस चालू रखने के लिए आपको उधार में देना पड़ेगा। यू कैन नॉट से उधार बंद और वो सब, है ना, आजकल बोर्ड लगाते हैं इसमें किराना स्टोर्स में, सब आप नहीं कर सकते, स्पेशली इन द बिजनेस। यू नीड टू गिव सॉफ्ट आपको क्रेडिट देना ही पड़ता है मार्केट में अगर आपको बिजनेस करना है, एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक बिजनेसेस। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कभी कभार क्या होता है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको कहीं जाना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, तो आपने दुकान बंद कर दिए या आपका फर्म में बंद कर दिए, तो आपका जो ग्राहक बन गया था दैट विल गो टू समबडी एल्स, है ना, फिर आपका जो बना बनाया ग्राहक टूट जाएगा आपसे। दैट इज द डिफिकल्टी इन रेजिंग मनी, है ना। वन मैन शो अगर है तो पैसा आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज, है ना, कितना पैसा आप रेस कर पाओगे। अगर 2-3 पार्टनर्स है तो उनके सोर्सेज होंगे, उससे वो पैसा रेस कर सकते हैं। रिलायंस ऑन वन पर्सन, एक ही पर्सन पे रिलायंस है, अगर वो उसका, है ना, टिल ऑल इज गुड, एवरीथिंग इज गोज स्मूथली, है ना, बट कुछ अगर गड़बड़ हुई तो प्रॉब्लम। सो सेकेंड इज पार्टनरशिप्स, 2-3 पार्टनर है, जैसे अभी पांडुरंग है, सागर सर है, इब्राहिम है ना, उमर, दे थिंक ऑफ नहीं हमको कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू करना है अपना, अपन पार्टनरशिप करेंगे। सो ऑल दीज 4 फ्रेंड्स कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट अ पार्टनरशिप। एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं, मोर कैपिटल है, चारों का अपना अपना सोर्सेज ऑफ मनी है, चारों अपने अपने सोर्सेज से पैसा लाएंगे। ग्रेटर टैलेंट पूल, सबका अलग अलग ये है ना, some may be expert in geotechnical, some may be expert in management, some of you may expert in environmental, some may be expert in building construction, है ना। ease of formation है, आसानी से बन जाता है, बिकॉज पार्टनरशिप में इतना कुछ डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। टैक्स बेनिफिट्स है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटीज में भी है, अगर देखो पैसा देना है मार्केट में तो उधार तो लेंगे लोग। लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, 1-2 साल अगर बिजनेस चला अच्छा, बाद में ठप पड़ सकता है। ओनरशिप ट्रांसफर डिफिकल्ट, है ना, समझो उमेर वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस पार्टनरशिप, है, तो फिर वो बाकी के 3 लोगों में डिवाइड करना किसको क्या नहीं, बिकॉज अभी जो पहला शेयर था वो रहेगा नहीं, किसी ने ज्यादा मेहनत किया होगा, किसी ने कम मेहनत किया होगा, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। नाउ यू ऑल मे बी गुड फ्रेंड्स बट इट मे हैपन दैट पैसा दरार डाल सकता है, तो बिजनेस वेंचर विद 2 और मोर ओनर्स, है, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप, ठीक है। दिस इज ऑल इन द लाइट मोड, हाँ, इसको कुछ सीरियसली मत लो। सो फाइन। कॉर्पोरेशन अगर है, कॉर्पोरेशन मीन्स अगर बड़े, है ना, बड़े जो, है ना, इट इज नॉट सिंगल पार्टनर, देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स। सो लिमिटेड लायबिलिटी है, उसमें एक के ऊपर बोझ नहीं आता है, बिकॉज कॉर्पोरेशन दे हैव स्ट्रांग होल्ड, दे विल नॉट गिव टू एवरी मांगने वाले को देंगे नहीं, एवरी, है ना, they will not search businesses, the businesses will come and search them, है ना। कम्युनिटी है, लाइक ग्रेटर लाइवलीहुड ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, है ना, प्रॉपर टीम होगी उनकी, देयर विल बी पीपल फॉर स्पेसिफिक रोल्स, है ना, स्पेसिफिक पर्सन विल बी फॉर स्पेसिफिक। आजकल क्या होता है, people are trying to be masters of all and in the meantime they become jack of none, not jack of one, jack of none बन जाते। हर कोई चीज, हर कोई हर कुछ करना चाहता है, जिसका स्पेशलाइजेशन नहीं है वो चीज करने जाओगे तो आप क्या होगे,
you might suffer losses. इसलिए ना ये सब सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑल ये सब कॉन्सेप्ट्स इसलिए है वो जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है वो चीज करो, जिसमें आपका एक्सपर्टाइज नहीं है जस्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग. ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ लोअर प्रॉफिट फ्रॉम दैट, बट आपका हेडेक कम हो जाता है. easier access to money because corporations में again they are trusted people, so people more pool is there for money. Potential shareholders revolts, higher startup cost है ना, because documentation and all ये सब होता है. लोग बोलेंगे नहीं हमको हमारा पैसा बिक के बिक चाहिए एंड ऑल जो भी है प्रॉब्लम होता है. डबल टैक्सेशन बिकॉज एक तो इंडिविजुअल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन का टैक्स हो गया. कॉर्पोरेशन सिंगल सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है. तो समरी, so financial manager controls the daily cash flows and outflows resulting from business operations, makes occasional investment and financial decisions, may work in corporation other forms of organization. तो main goal क्या है, maximize wealth of the owners by earning an attractive return in the business at an acceptable. देखो ज्यादा भी रिटर्न नहीं हो चलेगा, अट्रैक्टिव रिटर्न होना चाहिए, रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं. एकदम ज्यादा रिस्क है तो भी मत जाओ, जैसे क्रिप्टो का ये रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए आई सिंसियरली टोल्ड यू डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो अनलेस यू आर एश्योर्ड ऑफ इट. ठीक है. तो वेल्थ मैक्सिमेशन इज द एम, अट्रैक्टिव रिटर्न होना चाहिए, रिस्क शुड बी मिनिमम और एक्सेप्टेबल एटलीस्ट. ऐसा नहीं होगा कि आपको जीरो रिस्क, कोई भी चीज में जीरो रिस्क नहीं होता है. इवन आप बैंक में भी पैसा रखते हो, आप बोलोगे मुझे एश्योर्ड पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं. बैंक डूब गई तो पैसा भी डूब जाएगा, पता ऐसा हुआ है बहुत सारे केसेस. फाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. Saturday also we'll have theory only, so that's why I'm not calling you on to college on Saturday because theory में अंदर से आप आओगे फिर है ना 2-3 घंटा इधर जस्ट फॉर थ्योरी. इट इज नॉट, आई डोंट फील इट इज वर्थ है ना आपको, मतलब Correct, ट्रैवलिंग sir. करना. हाँ. तो ऑनलाइन में थ्योरी वैसे भी समझ जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग भी है, दैट आल्सो कैन बी शेयर. सो इट इज हाँ ऑफ कोर्स फॉर न्यूमेरिकल पार्ट आई विल कॉल यू बिकॉज़ सॉल्विंग एंड ऑल है ना, यू विल एंजॉय. फाइन. Yes, sir. So with this we'll end. All of you are just required Thank to you. write your roll numbers in the chat box. So can we leave? Yeah, those who have given attendance can leave.